सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। होप करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। सो आई एम बैक अगेन विद इंडियन सोसाइटी करंट अफेयर्स। So very important, very essential for UPSC, for any competitive exam. So these current affairs are as we are covering weekly. So इस बार हम बात करेंगे 21 से 27 जुलाई की, बट उससे पहले हम अपने स्पेशल एडिशन एडिटोरियल सिंप्लीफाइड, जो आपका ईज ऑफ आंसर राइटिंग बढ़ा देगा। काश मेरे ज़माने में भी कोई ऐसे हेल्प करता होता, बट चलो। सो एडिटोरियल सिंप्लीफाइड में वन ऑफ द एडिटोरियल्स विच अपीयर्ड, सिमिलर एडिटोरियल्स अपीयर्ड इन द गार्डियन, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। सो ये वाले एडिटोरियल्स के बारे में हम क्या बात करेंगे, वेरी एसेंशियल। आंसर लिखना साथ साथ देख लेना, प्रोवाइडेड प्रूव्ड आंसर होगा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। What the question could be around the editorial that we should know that nowadays we have seen during the pandemic, ये जो सबसे बड़ी hugest news है आजकल, pandemic, उसमें क्या हो रहा है? The biggest thing we have seen, one of the huge things we have seen is that the urban spaces have proved to be exclusionary or non-inclusive. So उसके बारे में हम बात करेंगे that the need to make urban spaces more inclusive. The need to make urban spaces more inclusive. कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? जैसे ही पैंडेमिक के लिए हमने लॉकडाउन लगाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाया, फुल कंट्री लॉकडाउन किया। Then because of that lockdown, many millions of the migrant workers had to rush back to their hometowns or villages. And what was seen that the smart cities, that the cities have not proved to be inclusionary, inclusive urban development नहीं है हमारे देश में. So what is why the need? Because these people, these migrants did not even have basic facilities. And what needs to be done? So the question can be directly in your exam. Some question around pandemic is definite. I repeat that again, definite. So pandemic and उसके related सारे के सारे आंसर्स मैं हर हफ्ते एटलीस्ट एक कराता हूँ आपको. So please be very sure कि क्या करना है. Look at the beauty of expression in these editorials, right? So the question, what can be the question regarding this? That see, the UPSC frames questions somewhat like this. Looking at or observing the mass migration during pandemic, reverse migration, if you say reverse mass migration from cities back to the villages, the smart city mission needs certain improvements to make the urban spaces inclusive. So you may, the directive could be comment, the directive could be explain. So all those things, the information, the fodder points are provided here. आपने जस्ट नोट डाउन कर लेना, PDF से देख लेना जैसे मर्जी, बट ध्यान रखना जब मेंस में आंसर लिख के आओगे तो बड़ी धूमधाम से, बड़े ही पॉम्प एंड फेयर से नंबर आएंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, राइट? सो कीप नोटिंग डाउन और कीप मार्किंग इन योर PDFs. And again I'll repeat before starting going into it that the lecture will have questions in the end, so please be very focused. Only then you will be able to answer those questions. These may appear MCQ questions, these may appear this year, next year or year after that, because these are important, relevant things, right? So let's jump into this. So the need to make urban spaces more inclusive. The COVID-19 pandemic has proved that the Indian cities are overburdened and underprepared to provide guaranteed social protection to millions of migrant workers. So social protection मिली ही नहीं migrant workers को. उन्हें आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में कि कुछ रिपोर्टर पीछे भाग रहे हैं, migrant workers अपना सामान उठा के, अपने बच्चे उठा के और अपनी बीवियों के साथ बेचारे पैदल ही हज़ारों किलोमीटर की जर्नी पे निकले हुए हैं. कुछ बेचारे अनफॉर्चुनेटली रास्ते में किसी की डेथ हो जाती है, कुछ कोविड के शिकार हो जाते हैं, कुछ अपने विलेजेस में जाके उन्हें
ऑस्ट्रेसिजन फेस करना पड़ता है, ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं, वहाँ से विलेजेस से निकाल देते हैं. सो ऑल दोज फैक्ट्स prove this, that there was lack of social protection to millions of migrant workers. Further, with over 90% of the population working in the informal sector, we know this, that over 90% of the working population is in the informal sector. Formal jobs नहीं है हमारे देश में, right? The International Labour Organization has predicted that as a result of the crisis, COVID crisis, and subsequent lockdown, there might be further losses for the migrant workers, right? और ज़्यादा नुकसान होने की कवायद हो सकती है, right? Given the significance of these laborers to urban development, so what is the significance of these laborers, migrant workers? आप अपनी मम्मी से पूछना कितना मुश्किल हुआ है घर चलाना इस टाइम, जबकि काम वाली नहीं आ सकती है, बर्तन वाली नहीं आ सकती है, सफाई वाली नहीं आ सकती है, और अगर आ भी सकती है तो आपको अनसेफ फील होता है. सो वी शुड नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट दिस एडिटोरियल आर्टिकल इज ट्राइंग टू से, वी शुड नाउ अंडरस्टैंड दैट दीज पीपल, द माइग्रेंट्स, आर नॉट ओनली हेयर फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स, they are complementary and supplementary to the people in the city, to us living in the cities. They are very, very necessary, right? So going further, there is a need to address the stark inequalities and make urban spaces in India more socially and financially inclusive. So financially inclusive के लिए economic policies like गरीब कल्याण योजना etc. सोशल इंक्लूजन के लिए क्या चाहिए? सोशल इंक्लूजन के लिए बिहेवियर एटीट्यूडनल चेंज चाहिए. सोशल इंक्लूजन के लिए ब्रॉडर कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड चाहिए. इफ़ यू रेड एथिक्स यू माइट नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम आने पे एथिक्स भी करेंगे हम, राइट? सो वी डोंट नीड जस्ट ओनली फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक थिंग्स, वी नीड सोशल इंक्लूजन एज वेल, राइट? सो गोइंग फर्दर, What are the issues faced by the migrant workers? क्या issues हैं जी इनके, क्या दिक्कतें आती हैं इन्हें? पहली, लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज. अब हमको कहा जा रहा है जी सोशल डिस्टेंसिंग करो. It is possible for us. We are actually in cities. What is happening these days? We are without even the pandemic. We are distant from our families. मेरा रूम, मेरा वॉशरूम, मेरा तौलिया, मेरी चप्पल, मेरा सब कुछ आपने कैसे यूज कर लिया? This is what is happening. So, but we have access to infrastructure, we have access to finance that we can practice social distancing, and that is good. But what happens in the migrant workers? एक किस्सा याद आता है मुझे यार. एक बार मैं सुबह जा रहा था अपने काम पे, एंड रास्ते में यार एक 2-3 बंदे ने एक रूम के बाहर खड़े थे, तो ऐसे ही आपस में बड़ी ज़ोर से बात कर रहे थे. आई वॉज वॉकिंग बैक देन, आई वॉज वॉकिंग टू माई व्हीकल. सो उनसे मैंने कहा यार ये रूम के अंदर क्या है, तुम लोगों ने बाहर क्यों लाइन लगाई हुई है? सो ही सेड सर हमारी बस्ती का ना ये कॉमन वॉशरूम है, हम सारे यहीं पे नहाते और फ्रेश वगैरह होते हैं. सो और कोई नहीं है तो बारी वाइज करते हैं. सो दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इवन बेसिक फैसिलिटीज लाइक टैप वाटर एट देयर प्लेस, टॉयलेट्स एट देयर प्लेस, और इवन दे हैव शेयर्ड बेसिक स्पेसिस एज वेल. कि साथ में कुछ तो इतने छोटे घर हैं कि सोने जितनी जगह है, बाहर खाना भी खाना है तो बाहर इकट्ठे बैठना पड़ता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम विदाउट बेसिक अमेनिटीज, with lack of basic amenities to practice hygienic social distancing, right? Then huge gap in data about migrants. This is a very unfortunate thing pointed out recently when the crisis happened. अब सारे पूछ रहे हैं पॉलिसी बनाने वाले कि लेबर ब्यूरो आप बताओ कितने माइग्रेंट थे, या फिर रजिस्ट्रार जनरल आप बताओ कितने माइग्रेंट आ जा रहे हैं. किसी को नहीं पता. डाटा पता है कौन सा दिखा रहे हैं? वो जो श्रमिक ट्रेन्स जो माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल चलाई थी अपने विलेज जाने के लिए, अपने होम टाउन जाने के लिए, उसमें कितनी टिकट्स बुक हुई? बस वही माइग्रेंट्स थे. सी देयर इज अ ग्रेट फॉल्ट इन दिस. there might be a very big error in this, because there were among those migrant laborers there were students traveling through those श्रमिक trains.
and some of the migrant laborers never took the risk. So how can you make a policy about somebody you do not know even the number of? You do not know कि कितने ज़्यादा लोग इग्नोर हो रहे हैं माइग्रेंट क्राइसिस में, कितने ज़्यादा लोग अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट्स के लिए भी तरस रहे हैं इन अ लेट्स से a democratic country like India where equality and equity is the rule, equity is the essence of our constitution. But still, that is happening. So, further जी, challenge of informalization, वही बात कि about 90% of the workforce in our country is in informal sector. So, आपके पास उनका भी economic data नहीं है. So again, lack of data or data as you call it, right? So some of the major challenges due to the informalization क्या है? Lack of job. जैसे ही पैंडेमिक हुआ तो आधे से ज़्यादा लोगों की, कितने सारे लोगों की जॉब चली गई. They were getting, let's say there were let's say 10 children of a migrant laborer in this city and all of the members were earning 10,000 a month. So they were okay, they were happy with it. But since lockdown day one, they've lost their jobs. The street vendors have lost their places to sell. And even when they regain it, people are actually cautious and trying to avoid them. So what's happening? The vulnerable, this happens not only during this crisis. This happened during each and every crisis. It happens over and over again, that the vulnerable section of the society suffers the most. So for whom do we need to have security codes? For whom do we need to have social protection? For whom do we need to have the social, let's say the social protective policies, so that these people are not met with sufferings? For the vulnerable, we should have protocols, we should have policies. You might be wondering what can be done. Some people might have this argument that what can be done for the others. मेरी क्या गलती अगर कोई सफ़र कर रहा है? सर, आपकी गलती हो ना हो, बट सरकार की पॉलिसी जब तक सबके पास सबका वेलफेयर नहीं कर पाती, पहली बात ये, इन अ वेलफेयर स्टेट इफ एनीबडी सफर्स, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द स्टेट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, remember our father of our nation, father of the nation, he said that poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. उन लोगों की गरीबी, उन लोगों की व्यथा, sadness is not a cause of concern only for the government, but it is a cause of concern for you looking at the video, right? So going further, क्या प्रॉब्लम्स हैं जी? नो एक्सेस टू बैंकिंग. हमें तो पैसा नहीं मिल रहा था, हमने कार्ड बैंकिंग कर ली, उनके पास नहीं है. देन इंश्योरेंस चैनल्स भी नहीं है. जनरली अंडर डेवलप्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन गेट ट्रीटेड, राइट? सो गोइंग फर्दर, स्टेप्स टू मेक अर्बन स्पेसेस मोर इंक्लूसिव. सो पे ग्रेट अटेंशन ओवर हेयर. ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं इन आंसर राइटिंग. सॉल्यूशंस देने हैं आपने, प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है एज अ ब्यूरोक्रेट. सो यूपीएससी विल आस्क यू दिस एंड दिस विल बिकम एन आंसर. प्लीज मार्क them in the PDF or write it down as you like. I would prefer writing it down because that way you remember more, right? So क्या सोल्यूशन है जी, क्या स्टेप्स हैं अर्बन स्पेसेस को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए? पहली बात, क्रिएशन ऑफ अ डाटा बेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. एटलीस्ट पता तो हो हमें कितने माइग्रेंट वर्कर हैं. जितनों का भला करना है उनके बारे में आपको पता ही कुछ नहीं तो क्या भला करोगे? यू डोंट नीड नो द प्रॉब्लम. सो देयर वाज दिस, एक जोक याद आ गया इससे मुझे, कि पंजाबी का जोक है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ. बट जोक ऐसा था कि एक बंदा डॉक्टर के पास विजिट करता है कि सर मेरी उंगली में दर्द होती है बार बार. सो डॉक्टर उसे सब कुछ उंगली के लिए दवाई दे देता है, इंजेक्शन लगा देता है, कुछ देख दुख के कहता है एक्सरे करा लो, ये करा लो. देन वो उससे कोई पूछता ही नहीं उसकी उंगली में क्यों दर्द होती है. सो जब वो घर जाके बताता है अपने एजुकेटेड ब्रदर को कि मैंने बोला मेरी उंगली में दर्द होती है, उन्होंने ये दवाई दे दी, मुझे टीका लगा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसका भाई कंपैशनेट था उसके लिए. तो भाई ने पूछा कब दर्द होती है? तो वो कहता है जी जब मैं ऐसे करके पीछे पैर फंसा के जुत्ती पाता हूँ अपनी.
अपना शू जब मैं उंगली से लगा के डालता हूँ तब दर्द होती है, तो उसका इलाज वो मेडिसिन और ये वो थोड़ी था कि उसे बड़े साइज़ का, नॉर्मल साइज़ का, अपने साइज़ का जूता चाहिए था। सो जब तक आपके पास उनका डाटा ही नहीं है तो आप उनका इलाज, उनकी कंसर्न, उनका वेलफेयर कैसे करेंगे, राइट? सो फर्स्ट इज दिस क्रिएशन ऑफ डाटाबेस। सेकंड, लेबर माइग्रेशन गवर्नेंस सिस्टम। लेबर माइग्रेशन गवर्नेंस सिस्टम, व्हाट इज दिस गवर्नेंस सिस्टम? कि एटलीस्ट जहाँ से, जिस स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से लेबर जा रहा है, माइग्रेंट लेबर जा रही है, लीव कर रही है, उनके पास भी बेस डाटाबेस होना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे पहुँच रहे हैं डेस्टिनेशन, उस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में भी डाटाबेस होना चाहिए, सो दैट this will solve a lot of problems. Not only this, that the crisis will be managed better, but also there are instances like crimes by these people. These people, because of suffering and out of frustration, might indulge into criminal behavior. So the trail can be made easy. So if governance system is installed, then it would be good for everyone, right? Then formalization of the economy. This has been touted as the solution for many problems. More job creation, more formalization of the economy. Do you know this, that GST, one of the aims of GST was formalization, right? So going further, unorganized worker index number card, unorganized worker index number card by the labor ministry would also help in formalization of workforce. तो ये जो unorganized worker का एक कार्ड बना रहे हो आप, इससे क्या हो रहा है? सेमी फॉर्मलाइजेशन हो रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी। एटलीस्ट यू नो समथिंग अबाउट दैट पर्सन, दैट व्हाट डज ही अर्न। इट विल नॉट ओनली हेल्प इन मैनेजिंग क्राइसिस, दिस इज अ होलिस्टिक पॉइंट, इट विल हेल्प इन मैनेजिंग टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एज वेल, राइट? सो गोइंग फर्दर, फोकसिंग ऑन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस हैज बीन, द गवर्नमेंट हैज नाउ वेकन अप आउट ऑफ दिस slumber. Now they want to spend on health. And very fortunately, now we have actually decided, this is a historical movement, that we have decided to spend more on education as well. The new policy is a historic movement. We'll discuss that in detail, right? Probably next time. So, public health infrastructure, very, very necessary now. India has great potential. See this pandemic. A true bureaucrat will see this pandemic as an opportunity. This is not only a challenge, this is a great opportunity. India as a nation has great opportunity to become the health hub of the world, the health services hub of the world, right? So this is a great opportunity if we manage it better. Then supporting financially, like the policies which are being made today. So one thing is for sure, that policies are on their way, but what is a basic problem with it? This is a knee-jerk reaction. What do I mean by knee-jerk reaction? जैसे ही पैंडेमिक आया वैसे ही आपने पॉलिसियां बनानी शुरू करी. So you are, as we say in governance, this is reactive governance, not proactive governance. जब तक किसी ने मारा ना था तब तक मैं आराम से बैठा था, जिस दिन मार पड़ गई उस दिन जिम जाने लग गया. So what's the benefit? Governance ऐसे नहीं चलनी चाहिए. We should not be reactive, we should be proactive in our governance. One more point you can add over here. Right, so conclusion में क्या लिखेंगे? देखो जी, ready answer है, याद कर लो, लिखा ना अगर क्वेश्चन आया. So the global experience shows that migration will continue as long as there is hope, aspiration and an alternative livelihood option better than those available at home, right? माइग्रेशन तब तक चलता रहेगा जब तक होप है, उम्मीद है, एस्पिरेशन है, डिजायर है और बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है शहरों में, तब तक माइग्रेशन चलता रहेगा. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट हैज द टास्क टू बिल्ड बैक बेटर अर्बन स्पेसेस इन इंडिया with a human centered approach, with a human centered approach. So 2015 में एक क्वेश्चन भी आया था इसके अराउंड कि क्या स्मार्ट सिटी पॉलिसी एक्सक्लूसिव है, क्या स्मार्ट सिटीज पुअर के लिए एक्सक्लूजनरी बन रही हैं. सो वन ऑफ आवर ग्रेट फ्रेंड्स टोल्ड, सर हाँ जी. सो मैंने कहा नहीं यार, आंसर लिखते हुए एक चीज़ ध्यान रखना, आई विल गिव यू दिस गाइडेंस एज वेल,
कि एकदम से हाँ जी और ना जी तो जवाब होता ही नहीं। स्मार्ट सिटी की जो पॉलिसी है, अगर उस पर सवाल आए, आप ये नहीं कह सकते हाँ हाँ ये तो एक्सक्लूजनरी है, स्मार्ट विलेज बनाओ, सिटी छोड़ो। ऐसे नहीं करना भाई, ब्यूरोक्रेट हो आप, डिप्लोमेट हो आप, या फिर एस्पायर कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी के लिए। सो व्हाट शुड हैव बीन डन, दैट द सॉल्यूशन कुड बी that the smart city policy should be made more holistic. Look at this conclusion. The smart city policy can be made more holistic by adding to its various advantages the very imperative thing of inclusiveness. As our Honorable Prime Minister says, innovation and inclusiveness is very, very necessary for progress of this nation. So the smart city do not need to be ruptured or let's say finished, खत्म कर दो, बेकार है, नहीं जी नहीं. Smart city mission needs to be made more holistic. Right? This is what I believe should be the answer to such a question. Right? So now going to the news for the week. आज हम ये 5 टॉपिक करेंगे जो सोसाइटी से रेलेवेंट है. जनरेशन अनलिमिटेड युवा, ये यूनिसेफ का एक लेट्स से पोर्टल है एंड इस पे इंडिया ने ज्वाइन करा है. देन अचीविंग जीरो हंगर, एसडीजी की बात है, उस पे यूएन की रिपोर्ट है. आई होप आपको याद होगा यार, प्लीज कमेंट इफ यू नो कि अचीविंग जीरो हंगर इज विच नंबर ऑफ एसडीजी, कौन सा नंबर है एसडीजी का. अगेन इफ यू नो इट प्लीज कमेंट, नहीं पता तो आगे अभी स्लाइड्स में आएगा, नहीं तो डाउट पूछ लेना. राइट. सो एंड ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस, this the tripartite agreement has been in news for long. So regarding that we have this discussion, this news. Then new warning on tobacco products. Tobacco is to be let's say shunted out gradually. So tobacco products पे जो news है उनकी packets and labeling and branding के ऊपर है. We'll discuss on that. Then idea of social security number for migrants. Again this is मैचिंग आर एडिटोरियल, जिसके अराउंड एडिटोरियल अभी हमने डिस्कस किया. राइट. सो लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस. सो फर्स्ट थिंग युवा, ये फोटो याद रख लेना यार, अच्छी सी फोटो है. जनरेशन अनलिमिटेड. सो हम हैं युवा आज के, आप हैं युवा आज के. युवा मूवी किसकी थी, याद है किसी को यार, प्लीज कमेंट कर देना. सो हम हैं युवा आज के, हमने देश को पंख लगाने हैं और तरक्की की ओर लेके जाना है ना. तो चलो ये बात करते हैं क्या है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स हैज साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद युवा टू वर्क इन पार्टनरशिप टू प्रमोट वॉलंटियरिज्म among the youth of India as well as to help them transition from education and learning to productive work, skilling and being active citizens. So this is the duty of the youngsters as well, to be active citizens, to help themselves and help others. So this is what is being done. And ये words आपको नई education policy में भी मिलेंगे, productive work, skilling and active citizens, right? So UNICEF, ये ध्यान रखना किसने लॉन्च करा है, प्रीलिम्स में आ जाता है. UNICEF had launched the Generation Unlimited युवा in November 2019. किन्होंने लॉन्च किया जी, UNICEF. We know the full form, right? मैं ऐसे तो नहीं बात कर रहा कि हमें यूनिसेफ की फुल फॉर्म नहीं पता. आई होप यू आर अवेयर, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में यार, मुझे नहीं पता प्लीज. राइट. सो गोइंग फर्दर, इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस विच एम्स टू फैसिलिटेट यूथ टू गेन रेलेवेंट स्किल्स फॉर प्रोडक्टिव लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ वर्क. राइट. वर्क के फ्यूचर की बात हो रही है, प्रोडक्टिव लाइफ बनाने की बात हो रही है, तरक्की की बात हो रही है. The target age group of युवा includes adolescent girls and boys. Adolescents में we are more let's say imprintable, कि हमारे ऊपर लिखा जा सकता है. Adolescents में ज़्यादा, right? Impressionable if you want to say. So good impressions are good for this age, adolescents, right? So its key mission is to promote among youth foundational skills, life skills, flexible learning, and identifying and scaling impactful delivery models. So we are actually talking of the progress for the youth and empowering the youth, right? Yuva intends to create platforms to guide youth to market opportunities, career guidance, mentorship, internships, apprenticeships,
and facilitate integration of career guidance in school education. So school education में this is what I also personally felt कि more and more career guidance होनी चाहिए. जब हम यार आप लोगों ने अगर फील करा हो तो मेरे साथ corroborate करना comment section में. I'll tell you a story what I believe, just a belief. So यार जब हम स्कूल में थे, चौथी, पांचवी, छठी, 7th, 8th, whatever class we were in, so we were only linked to that textbook. टीचर सेड कि ये याद कर ले भाई, आंसर अंडरलाइन कराए जाते थे. ओनली टेक्स्ट बुक लर्निंग, कि हमारी विजन ही उधर तक थी कि ये टेक्स्ट बुक याद करके मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा और मेरे नंबर ही मेरा सब कुछ है. सो वट एवर आई कॉम्प्रोमाइज फॉर दैट, वट एवर वी कॉम्प्रोमाइज फॉर दैट एज अ जनरेशन, वॉजंट दैट अनफॉर्चुनेट कि सिर्फ टेक्स्ट बुक लर्निंग तक ही हमारा नैरो विजन था, हम ब्रॉडर पिक्चर देख ही नहीं पा रहे थे. सो अभी ये युवा पोर्टल एक पॉइंट है ब्रॉडर पिक्चर में, and the new education policy also is aiming to step or not step apart, let's say, to make education more comprehensive, to include activity based learning, to include something apart from just the textbook ratifying, right? So this is great. Even as a point, these two, Yuva and the new education policy, this is one of the government policies which will solve the problem of unskilled youth, which will help in reaping the demographic dividend. देखो कैसे आपने इंटीग्रेशन बनानी है नॉलेज की. इंटीग्रेशन बनेगी फिर मेंस में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके हाथ में आंसर होगा. आप यूं पॉइंट्स लिखोगे और पॉइंट्स लिखते लिखते इवन आपके नंबर और रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा. अभी आंसर राइटिंग की थोड़ी सी और बात करेंगे, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं. राइट, प्लेटफॉर्म जी करियर गाइडेंस के लिए. देन नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज अचीविंग जीरो हंगर. ये लगी फोटो, कौन सा नंबर था उसका? एसडीजी का सेकंड एसडीजी है जी, जीरो हंगर वाला. प्लीज ध्यान रख लेना, फोटो से याद रह जाएगा कि सर ने ये कोली सी बनाई थी, उसके ऊपर हंगर था. भूख लगी हो तो कुछ खा लेना. सो अचीविंग जीरो हंगर बाय 2030 यूएन रिपोर्ट. क्या कहना चाहते हैं ये लोग? According to a study titled State of Food Security and Nutrition in the World, Hunger and Malnutrition is increasing around the world. So हम सोचते हैं कि दुनिया अमीर हो रही है, भारत तरक्की कर रहा है और दुनिया में भूखमरी कम हो रही है, बट रिपोर्ट ने ढूंढ के निकाला है कि यार माल न्यूट्रिशन एंड हंगर बढ़ रहा है. कैन यू इवन बिलीव दैट? Yes, it is happening, and COVID also is having a great impact on this. Right? So in this scenario, achieving the sustainable development goal zero hunger by 2030 will be very difficult. So zero hunger 2030 तक achieve करना था SDG. So now it has become a graver challenge. Right? So this can be also a point in your answers. This is the most authoritative global study tracking progress towards ending hunger and malnutrition. सो सबसे अथॉरिटेटिव स्टडी, सबसे ऑथेंटिक स्टडी माना जाता है इसको. किसको जी? दिस स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. राइट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. अब प्रीलिम में सवाल आ गया जी, यही सवाल आ जाएगा, देख लो, क्या पता आ जाए. तो आप बताओ कौन पब्लिश करता है रिपोर्ट? बता दो यार, आप ही बताओगे. सी, सबको मेरी गुजारिश, जिसको पता है आज वो आंसर लिख दो नीचे कमेंट में. मेरे को एप्रिसिएशन के साथ मोटिवेशन भी मिलती है कि आप लोग देख रहे हो और सुन रहे हो. अगर नहीं पता है तो लिख दो, मुझे नहीं पता सर, आप पूछ रहे हो बट मुझे नहीं पता, बट मैं कंट्रीब्यूट फिर भी कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट फिर भी कर रहा हूँ. लिख दो मुझे नहीं पता. आई होप लिख दिया तो मैं दिखा देता हूँ. देखो कौन पब्लिश कर रहा है, ये सारे जी. इट इज़ जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, then United Nations Children Fund and Child's Emergency Fund, United Nations, then UN World Food Program जी UN का, and World Health Organization. Reports and indices are very, very, very relevant. I keep on repeating, requesting, make a table, make a list की about 200-250 रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लो. एक ना एक तो डेफिनेटली आएगा. दीवार पे लकीर, पत्थर पे लकीर, एक रिपोर्ट तो आती है, पिछले कई सालों से आ रही है, तो अगली बार भी ज़रूर आएगी, क्या पता 2 भी आ जाए. राइट? सो गोइंग फर्दर,
की पॉइंट्स क्या है जी इस रिपोर्ट के? इंक्रीजिंग हंगर, देयर इज स्टीप राइज, द स्टडी एस्टिमेट्स दैट ऑलमोस्ट 690 मिलियन पीपल वेंट हंग्री इन 2019। कितने लाखों लोग हंग्री हैं। एंड हंगर इज एन अनकंफर्टेबल और पेनफुल फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ डाइटरी एनर्जी। एक और जोक याद आ गया यहाँ पे मुझे, कि एक जोक बचपन में सुनते होते थे कि यार जापान में बच्चा अपनी माँ से सुबह उठ के कहता है, मम्मी आई विल फिक्स योर स्टीरियो, गिव मी सम मनी। सो ओके ही फिक्सेस हर स्टीरियो। देन अमेरिका में बच्चा उठ के कहता है कि डैड आई विल क्लीन द ड्राइववे ऑफ स्नो, आई विल अर्न सम मनी। सो ओके ड्राइववे क्लियर करके ही अर्न सम मनी। और इंडिया में बच्चा उठ के क्या कहता है? मम्मी भूख लगी। सो अगर भूखा रहना पड़े तो इट इज़ वेरी पेनफुल। एंड कितने लोग भूखे हैं? 690 मिलियन। एंड दिस वेंट अप बाय 10 मिलियन, 10 मिलियन 2018 से ज़्यादा। वेरी सैड। देन फॉर डेकेड्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ यूज द प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट इंडिकेटर। अंडर नरिशमेंट को इंडिकेटर यूज करते हैं टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड। Thus hunger may be referred to as undernourishment। भूखा रहना अंडर नरिशमेंट का एक बहुत बड़ा साइन है। Do you know we believe that America is very let's say progressive, very developed, but do you know majority now many of the Americans cannot afford 3 meals a day। This is not coming from my mouth, this is a very authoritative mouth which has been American citizen for many decades now, right? So hunger is not only here, it is everywhere, but more is here. As we'll see, chronic hunger, there has been no change in hunger trend since 2000. After steadily diminishing for decades, chronic hunger has slowly started to rise since 2014। 2014 से भूख बढ़ती जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये तरक्की की भूख नहीं है, प्रोग्रेस की भूख नहीं है, ये खाने की भूख है, नरिशमेंट की भूख है, राइट? सो रीजनल हॉटस्पॉट्स, हमारा एशिया नंबर 2, एज ऑलवेज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हंग्री पीपल। वी एशियंस आर मोर हंग्री, नॉट बिकॉज वी आर जस्ट let's say too much fond of food, but we lack food। And Africa is second, right? Then Latin America and Caribbean। रेट ऑफ हंगर जी, पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, रेट ऑफ हंगर देखें तो अफ्रीका का रेट ऑफ हंगर इज डबल एज कंपेयर टू एशिया। सो एब्सोल्यूट नंबर एशिया में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? अफ्रीका में, राइट? ये ध्यान देने वाली बात है, राइट? सो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, हमारा जो आजकल हर न्यूज़ चैनल पे भरा हुआ कोविड भाई। सो कोविड has become, this great problem has become a causing factor for millions of people going into hunger by end of 2020। reason क्या है जी? high cost and low affordability was the main reason behind the hunger। so this dangerous virus is not only let's say troubling us in our let's say the throat or the nose, but it is also troubling us in the stomach by making people more and more hungry। so we should get rid of this virus and mitigate the consequences very soon and very well, right? So going further, increasing malnutrition, affordability, the study estimates that 3 billion people or more cannot afford a healthy diet। अगर आप हेल्दी डाइट सुबह खाएंगे या इस लेक्चर के बाद खाएंगे, सो खाते हुए भगवान को, रब को, गॉड को, लॉर्ड को, जिसमें भी आपको विश्वास हो, और अपनी माँ को जिसने आपको खाना दिया, और अपने पिताजी को जिन्होंने आपको सर्व कराया या फिर कमा के दिया, उनको धन्यवाद ज़रूर करना। चाहे उन्होंने नहीं भी कमा के दिया, आपने खुद कमाया, उन्होंने आपको शक्ति दी कमाने की। सो फ्रॉम माई साइड से थैंक यू टू योर पेरेंट्स टुडे, just a request, right? So in sub-Saharan Africa and Southern Asia, this is the case for 57% of the population। Then the key reason behind malnutrition is high cost of nutritious food,
and low affordability of healthy diets for vast number of families. So अभी भी healthy diet affordability से बहुत सारे लोगों के बाहर है. Then according to a study, a healthy diet costs more than US dollars 1.90 per day. So this is the official threshold of poverty, 1.90 given by World Bank. So it is said that the healthy diet is beyond that. आप 1.90 dollars per day में भी healthy diet नहीं खा सकते. Right? It puts the price of even the least expensive healthy diet at 5 times the price of filling stomachs with starch only. So सिर्फ starch से पेट भरना, चावल ही खाई जाना, उसके सिवाय अगर आप healthy diet से पेट भरो तो ये 1.90 से about 5 times है. Right? So impact on children. According to the study in 2019, nearly a third of children under 5 were stunted, too short for their age, और were wasted, too thin for their height, और weight बहुत कम है height के हिसाब से. Stunted and wasted का मतलब हमें पता होना चाहिए. Right? The study calls on government. अब ये solutions आ गए जी, ये काम में आएंगे. प्लीज़ ध्यान दे लेना, लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना बट ध्यान देना. राइट? सो टू मेन स्ट्रीम न्यूट्रिशन इन देयर अप्रोचेस टू एग्रीकल्चर, फर्स्ट वर्क टू कट कॉस्ट एस्केलेटिंग फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन स्टोरेज. एग्रीकल्चर का भला हो रहा है जी कि लॉसेस भी ना हो, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट महंगी ना हो. सपोर्ट लोकल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स. सो ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लेट्स से एक नेशन के लिए रिक्वेस्ट है कि लोकल के लिए वोकल बने. तो ओके, यू कैन यूज दैट फ्रेज ओवर हियर एज वेल. देन प्रायोरिटाइज चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन, द वनरेबल थिंग. चिल्ड्रन ही तो हमारे बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य हैं. सो सबसे पहले बच्चे का न्यूट्रिशन इंश्योर होना चाहिए. राइट? सो foster behavior change through education and communication. This is very, very, very important. Behavior change is one of the essential changes required. Right? Embed nutrition in national social protection system and investment strategies. So nutrition को भी investment strategy में एक strategy बनाओ कि अगर आप अपने बच्चे को सही न्यूट्रिशन खिला रहे हो, अगर आपका बच्चा है या आप किसी के बच्चे हैं, अगर आप अपनी तनख्वाह में से काफ़ी अमाउंट अपने बच्चे की हेल्थ पे लगा रहे हो, सो ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट लाइफ, इट विल हेल्प द नेशन, इट विल हेल्प ह्यूमैनिटी. राइट? सो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. वे फॉरवर्ड जी. द स्टडी इज रिमाइंडर दैट सच अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इज स्टिल हंग्री और स्टिल गोइंग हंग्री and should be a wake up call for the government कि उठो यार, उठो, वीडियो और लेक्चर शुरू हो गया, जल्दी उठो. और ये कह रहे हैं कि हंगर बढ़ता जा रहा है, उठो और ध्यान दो. एज आवर रिस्पेक्टेड स्वामी विवेकानंद सेड, विवेकानंद जी, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड. सो अब उठने की बारी है, हमारी भी, सबकी भी, आपकी तैयारी की बारी और देश की तरक्की की बारी. राइट? Innovative strategies such as shifting towards smart food is the need of the hour. Smart, everything is smart these days. Smart food, smart roads, smart you people, smart city, smartphones. Everything is turning smart. So we have to become smarter. Right? So smarter people, smart food is the need of the hour, which is highly nutritious and will certainly help to reduce hunger. Smart food comprises of food that is good for you, good for the planet and good for the farmer. ऐसा कौन सा खाना हो सकता है जो आपके लिए भी अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है और धरती के लिए भी अच्छा है? कौन सा खाना है ऐसा? आओ देखते हैं. So just a second, कौन सा खाना है? Just a second, I wanted to say this answer as well. If you know the answer, please tell me कौन सा खाना जो planet के लिए भी, आपके लिए भी और सबके लिए अच्छा है और किसान के लिए भी अच्छा है. Can you guess that? Can you give me one example? So coarse grains like bajra, ragi, all of those are good not only for the farmer. कि भाई एटलीस्ट पंजाब वाली साइड की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, सो यहाँ पे अब चावल लगाना इतना सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज पानी ज़्यादा लगता है, बारिश कम होती है
एंड ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है. सो कोर्स ग्रेन्स विल हेल्प द फार्मर बी मोर प्रोडक्टिव. सेकेंड, इट विल नॉट हार्म द अर्थ, ग्राउंड वाटर बच जाएगा और जिस जगह के लिए वो चीज़ उगनी चाहिए वहाँ उगेगी. बेटर प्रोडक्टिविटी होगी तो इनकम अच्छी होएगी. एंड गुड फॉर द पीपल एज वेल बिकॉज इट विल better meet your nutritious requirements. For example, it has more fiber, more protein as compared to more finer of the grains. The coarse grains have better food or nutritious value. So आप भी खुश, किसान भी खुश और धरती माँ भी स्माइल कर रहे हैं. Let's go on to the next topic, खुशी खुशी में. So ब्रू रियांग refugees, यार ये बहुत न्यूज़ में रहा है तो याद ही नहीं होता था ब्रू रियांग कहाँ से आए कहाँ गए. अब देखो ध्यान से, फोटो साथ में लाया हूँ. सो त्रिपुरा एंड मिजोरम की बात है. नॉन ब्रूज ऑफ त्रिपुरा हैव प्रपोज 6 प्लेसेस फॉर सेटलिंग द डिस्प्लेस्ड ब्रूज फ्रॉम मिजोरम. सो यार ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रूज थे, हमें पता है कि ये अबाउट 1990s में 97 के आसपास माइग्रेट कर गए थे अपनी स्टेट से एंड दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे बिकॉज इनकी होम स्टेट में इनके खिलाफ वायलेंस हो रही थी. राइट. सो अब उतने सालों से बहुत ही लेट्स से बदतर इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहे थे ना, अभी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुई है इनको अच्छे से सेटल करने की, वो बात हो रही है यहाँ पे. लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स. सो 6 जगहें प्रपोज करी हैं. दे ऑल्सो प्रपोज द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अ लिमिट फॉर द नंबर ऑफ फैमिलीज टू बी अकोमोडेटेड. Who are the Brus? Brus are also known as Riangs or Riangs, are ethnically different from Mizos. Mizos से फर्क है, with their own distinct language and dialect, and from one of the 21 scheduled tribes of Tripura. त्रिपुरा के scheduled tribes में आते हैं ये. Displaced Bru tribals from Mizoram are living as refugees in Tripura since 1997. So कहाँ पे रह रहे हैं अभी? त्रिपुरा. And brew and tea, if you can relate तो याद रहेगा, brew and tea, त्रिपुरा. Please, brew आपको पता है, tea आपको पता है, right? So त्रिपुरा में से displace होके from Mizoram are living in Tripura since 1997. In 1997, roughly half the Bru population fled to Tripura following violent clashes with Mizo population. Mizo and Bru में violent clashes करके जो Brus थे वो त्रिपुरा में settle हो गए 1997 में. And recently the Union Home Ministry finally inked the tripartite pact which now paves the way for these displaced Bru tribals from Mizoram to permanently settle in Tripura. सो त्रिपुरा में अब उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा. ट्राईपार्टाइट कैसे? एक पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दूसरी पार्टी मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी पार्टी ये त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट्स. राइट. तो उन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स. राइट. सो द ब्रूज स्प्रेड अक्रॉस त्रिपुरा, द ब्रूज आर स्प्रेड अक्रॉस त्रिपुरा, मिजोरम एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न असम. राइट. बट द मोस्ट पॉपुलस कहाँ पे जी? are the most populous tribe in Tripura, right? So going further, next topic is new warning on tobacco products. Ministry of Health and Welfare ने notify करी है जी कि tobacco products के जो rules हैं, cigarettes and other tobacco products packaging and labeling rules 2008. पहले हमारे पे इस पे 2016 के आसपास रूलिंग आई थी कि यार आपको 85% टोबैको या सिगरेट पैकेट पे वार्निंग देनी पड़ेगी. सो वार्निंग इसलिए कि ये डिसइंसेंटिवाइज करे उसके यूज़ को. आपने देखा होगा ऊपर लिखा होता है ज़्यादातर टोबैको प्रोडक्ट्स पे दैट इट कॉजेज कैंसर, एंड वो फोटो से भी ऐसे अगली सी बनाई होती है कि लोग डिसइंसेंटिवाइज हों. तो अब इसे बेटर करने के लिए क्या है, जो ऐसे बड़े टॉर से पीते थे ना, ये ब्रांड है वो ब्रांड है, अब वो ब्रांडिंग में हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, सिर्फ प्लेन लेबलिंग कर देंगे उसकी कि भाई कोई भी इनकरेजिंग या मोटिवेटिंग साइन ना रहे उस चीज़ में जिसको हम ख़त्म कराना चाहते हैं, जिसके यूज़ को हम डिसइंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि इसके ऊपर हम इसे सिन गुड मानते हैं, पाप का भागीदार मानते हैं हम इसे, टोबैको को. राइट.
So all tobacco products manufactured or imported or packaged on or after December 2020, please ध्यान रखना 1 December 2020 shall display new warning images and ensure that all tobacco products shall have specified health warnings exactly as prescribed. So new images होंगी, specific warnings होंगी. Violation of above mentioned provisions is a punishable offense with imprisonment or fine. नहीं मानोगे तो imprisonment हो जाएगी, फाइन लग जाएगा, right? India implemented larger 85% pictorial warnings on all tobacco products from April 2016. Right? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. This is fortunately one of the leading. हमारा ये tobacco disincentivize करने का तरीका one of the best in the world है, right? मतलब सबसे बड़ी 85% is a great percentage, right? So उस पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं. This is one of the biggest, right? So, however, to remove the last bit of glamour and attraction from tobacco packs, it must now embrace plain packaging. पैकेजिंग भी प्लेन कर देंगे, कोई ज़्यादा हुआ नहीं हो सके उसका, कि अट्रैक्शन यूथ की कम हो सके टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स के लिए, राइट? अदर देन द ब्रांड एंड प्रोडक्ट नेम्स डिस्प्लेड इन अ स्टैंडर्ड कलर एंड फॉन्ट स्टाइल, it prohibits the use of logos, colors, brands, images और promotional information. So brand के logos etc. वो अब नहीं लग पाएंगे, right? Good news. India has taken several preparatory steps implemented by other countries like Australia and UK that have introduced plain packaging. For example, stronger smoke-free laws, ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship, increase in taxes and a report from civil society task force. So ये सारे स्टेप और लिए जा सकते हैं और इंडिया इन पर प्रिपेयर कर रहा है लेने के लिए, राइट? सो देन नेक्स्ट टॉपिक, आइडिया ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर फॉर द माइग्रेंट्स. अगेन हमारे एडिटोरियल के साथ जाता हुआ टॉपिक है ये, जो हमने स्टार्टिंग में किया था. नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लेना, right? So the Parliamentary Standing Committee on Labour, committees based यार, this is not पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रीलिम्स में, कमिटीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं. सो प्लीज़ ध्यान दे लेना, न्यूज़ में है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर. सो फटाफट जो भी आपका सोर्स है, लक्ष्मीकांत है, कोई नोट्स हैं, बुकलेट है, उसमें से फटाफट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर देख लो कि कौन होता है इसका हेड, कितने मेंबर होते हैं, कहाँ से आते हैं. प्लीज़ फटाफट देख लो, पेपर में आ गया तो याद करके आंसर करना. माय नेम इज अनमोल मेहता, आई हैव रिपीटेडली सेड, राइट? सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने क्या कहा है जी? हैज रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ सोशल सिक्योरिटी नंबर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, especially those working in unorganized sector which are beyond the purview of labor laws. So जो बियॉन्ड दी परव्यू ऑफ लेबर लॉज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर काम कर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका एक पहचान पत्र सा बन जाएगा. क्या कहेंगे उसे? सोशल सिक्योरिटी नंबर. बैकग्राउंड क्या है अब इसका? द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज अनएबल टू गिव एनी कंक्रीट फिगर्स ऑन द नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. वही जो मैंने एडिटोरियल में बात बताई थी कि पता ही नहीं हमें कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं. डाटा कौन सा यूज कर रहे हैं? श्रमिक ट्रेन्स का. बट उसमें प्रॉब्लम क्या है जी? स्टूडेंट भी तो जा सकते हैं श्रमिक ट्रेन में. कितने सारे स्टूडेंट गए हैं और कितने सारे माइग्रेंट वर्कर नहीं गए. सो डाटा टोटली लैकिंग है जी. और डाटा ही नहीं है, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे, राइट? सो सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ मेकिंग आधार द बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स, क्योंकि आधार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, they should be given a social security number which is more effective way of covering them for insurance, health and other welfare programs. So migrant workers के लिए एक अलग पहचान हो जाएगी. आधार से तो ढूंढना पड़ेगा 132 करोड़ भारतीयों में से कौन सा भारतीय माइग्रेंट है, कौन सा नहीं है. सो सोशल सिक्योरिटी नंबर दो गई उसको जो माइग्रेंट है. सो बेटर आइडेंटिफिकेशन, बेटर गवर्नेंस, राइट? अ सोशल सिक्योरिटी नंबर इज असेंशियल टू अवॉइड सिचुएशंस लाइक the one during extended lockdown where several lakh workers had to walk back to their homes. Employment खत्म हो गई रातों रात, नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गई, एंड बेरोजगारी की हालत में कोई खाने को साधन नहीं रहा. एक गरीब की व्यथा बता रहा हूँ मैं.
तो फिर साहब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी पोटली उठाकर अपने गांव जा रहे हैं। कैसे जाएंगे? पता नहीं साहब, भगवान ले जाएगा। सो अगेन दैट इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम। ऐसा ना हो, उसका एक सोल्यूशन ये है, क्वेश्चन आना ही आना है कोविड पे, एक सोल्यूशन लिखते रहना या मार्क करते रहना, राइट। द नंबर विल नॉट ओनली हेल्प इन मैपिंग द नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स बट ऑल्सो देयर माइग्रेशन पैटर्न्स। सो उनके बारे में बेहतर जानने का आइडिया हमें मिलेगा इस नंबर से, राइट। अदर सजेशंस, बोथ द स्टेट ऑफ ओरिजिन एंड स्टेट वेयर द वर्कर हैज माइग्रेटेड शुड हैव अ रिकॉर्ड। जहाँ से आ रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। द माइग्रेंट वर्कर मे और मे नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी टफ। आजकल एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑनलाइन करके कि माइग्रेंट वर्कर्स के पास लेट्स से भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, माइग्रेंट वर्कर्स के पास इतनी महंगी महंगी फीस देने को पैसे नहीं है। सो दैट इज़ वाई वी आर हेयर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, राइट। सो therefore the smallest arm of administration, the gram sabhas, should be roped in. gram sabhas help करें, right, and municipalities help करें, lowest let's say the nearest level of democracy to the people. If they can help and we can contribute our own, we can make this nation progress, right. So concerns क्या हैं जी? It flagged issues related to the Social Security Fund stated under Social Security Code Bill 2019. There are no specific details in the legislation as to who will contribute to the fund. Social Security Fund बनाओगे but contribute करेगा कौन? पता नहीं, right. Most of the beneficiaries under PM गरीब कल्याण योजना were local workers and not migrants. So गरीब कल्याण योजना बनाई माइग्रेंट्स के लिए और बेनिफिट कौन लेंगे? Local worker. So again problem. This kind of error is inclusionary error or exclusionary error. Do we know this? Please try and answer in the comment if you know it. Right? Social Security Code Bill की बात हो रही है जिसकी हमने concern देखी. The central government has been working to concise 44 central labor laws into 4 broad codes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो भी मेरे साथ वकील भाई बैठे हैं, आपको याद होगा लेबर लॉ का सब्जेक्ट पास करना बहुत ही मुश्किल था, वेरी वेरी टफ। सो लेबर लॉज में अब 44 की जगह जो इतनी सारी प्रॉब्लम थी, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट, अब 4 कोड बना देंगे। एक तो लेबर के लिए ईजी, ऊपर से फैक्ट्री ओनर्स के लिए ईजी और लॉ स्टूडेंट्स के लिए ईजी, राइट। कौन से जी? कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थ एंड सेफ्टी। सो सोशल सिक्योरिटी बिल क्या करना चाहता है हम लोग बात कर चुके हैं। इट सीक्स टू अमेंड दीज एक्ट्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इनको नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन आया था भी कौन सी एक्ट को ये अमेंड करेगा। पिछली बार मैटरनिटी बेनिफिट 2019 में बहुत ज़्यादा डिटेल में सवाल आया था इस पर, राइट। सो सोशल सिक्योरिटी रेफर किससे करता है जी? टू मेजर्स टू इंश्योर हेल्थ केयर एंड प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी टू वर्कर्स। एंड इसमें बात किस चीज़ की हो रही है? प्रपोजेस सेटिंग अप अ सिक्योरिटी फंड सेटअप करेंगे, राइट। एंड गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स आर द गिग वर्कर्स रेफर टू वर्कर आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फंक्शन। जो बेसिकली जैसे ऊबर एंड ओला के जो ड्राइवर्स हैं वो गिग इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं कि आज ऊबर चला रहे थे, आज मन नहीं करा तो वो ऐप बंद करके ओला चलाने लग गए। सो नो परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस, राइट। सो गोइंग फर्दर जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आपकी बात आ गई, आपकी बारी आ गई है। सो अब हम करेंगे क्वेश्चंस और आप देंगे जवाब। आई विल गिव यू द आंसर्स इन द एंड। So please give me the answers. Please do contribute. So first, which among the following bodies has launched युवा? युवा किसने लॉन्च करा है? Ministry of Health. First is WHO, World Health Organization. B is Ministry of Health. C is HRD Ministry. D is UNICEF. So it is for you to answer. Right. Second question, which of the following does not publish State of Food Security and Nutrition in the World Report? इनमें से किसका हाथ नहीं है इस रिपोर्ट में? सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक? ABCD, you have to choose the answer
I'll give you the right answers in the end. I am sitting with you. Please keep on commenting. It motivates me. Right. So third question, which of the following states are the brews majorly located in? कौन सी स्टेट में है ब्रूज जी? तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात या त्रिपुरा? So it's for you to guess. Please keep on commenting the answers. Right, then gig economy refers to what among the following? अभी किया यार, मेरे ख्याल तो ऑप्शन भी ना दूं, आपको पता होगा. Majority of formal employees in the economy. Then second, no labor laws for the economy. Then third, female labor absent from the economy. Fourth option, D option, is economy having many freelancers and or independent contractors. So gig क्या होता है? Gig economy. Please comment the answer. Right, so last question for the day before I take your leave. So consider the following statements. Number one, cigarettes and other tobacco product rules 2008 are used to regulate the size of warnings on the cigarette packets. Right. Second, India implemented larger 85% pictorial health warnings on all tobacco products from 1st April 2016. So which of the above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, none. So these were the 5 questions. We had a fruitful discussion, I hope. I hope I could add to your knowledge, I could add to your content, I could add to your answer writing. So with wishing this, hoping this, wishing you all the best, this is Anmol Mehta saying bye-bye. See you next time. Thank you.